Problem number 1 of projectile. Determine which of the following moving objects would exhibit an approximate parabolic trajectory. Now ये conceptual question कर रहे हैं हम projectiles पे, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से moving objects हैं जो कि exhibit करेंगे approximate parabolic trajectory. तो first is, पहला है a ball thrown in an arbitrary डायरेक्शन. यदि हम एक बॉल को फेंकते हैं आर्बिट्रेरी किसी डायरेक्शन में, सो देन what type of motion will it execute? So it will have a parabolic path, because बॉल मैंने चाहे नॉर्थ साइड पे फेंकी चाहे साउथ साइड पे फेंकी, तो क्या होगा, it will execute a parabolic path, it will behave as a projectile. सेकंड है बेटा, सेकंड क्या है, a jet airplane. Now a jet airplane will not have a parabolic path. एक जेट एयरप्लेन जो है वो कंट्रोल में होता है पायलट के, so it will not execute any parabolic path. No, it will have straight line path. Next, a rocket leaving the launching pad. A rocket leaving the launching pad executes one dimension motion, that is straight. So a rocket leaving the launching pad. What type of motion will it execute? It will execute 1D, that is one dimension, straight line path. Next, a rocket a few minutes after launch with failed engines. A rocket few minutes after the launch with failed engines. हाँ जी, तो रॉकेट फ्यू मिनट्स आफ्टर द लॉन्च विद फेल्ड इंजन्स, यदि रॉकेट का इंजन फेल हो जाए तो थोड़ी देर बाद व्हाट विल हैपन, इट विल टेंड टू fall down. Will it execute a parabolic path? Yes, it will have a parabolic path. इसके पास parabolic path होगा ही होगा. Next, a tossed coin moving to the bottom of a pond. Now, अगर एक कॉइन टॉस किया हमने और वो पॉन्ड के बॉटम में जा रहा है, तो उसको जो लिक्विड है, जो वाटर है, इट विल गिव इट रिएक्शन. वो उसको रिएक्शन देगा, यानी कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा इस पर्टिकुलर केस में, एंड इट विल बी एग्जीक्यूटिंग मोशन इन वन डायमेंशन ओनली. It will not follow a parabolic path. So this was the first question. We go on to the next question. This was a conceptual question to categorize what type of motion is undergoing. Now second question, a fireman, this is on a oblique projectile. This is problem on a oblique projectile.
a fireman 50 meter away from a burning building directs a stream of water from a fire hose at an angle of 30 degree above the horizontal. If the velocity of the stream is 40 meter per second, at what height will the stream of water strike the building? You take G as 10 meter per second square. Now देखिए, fireman 50 meter away खड़ा है from a burning building, directs a stream of water from a fire hose at an angle of 30 degree above the horizontal. If the velocity of the stream is 40 meter per second, at what height will the stream of water strike the building? Now देखिए, आपको जो given data है इसमें से kindly data को proper form में लिख लीजिए. X is 50 meter. Now the distance the person is standing, that is x-axis, that is horizontal axis, and he is standing at 50 meters, and angle theta is 30 degree. That is the angle made by the projectile with the horizontal, it is 30. Now if the velocity of the stream is 40 meter per second, so I wish to calculate what height the stream will hit. तो उसके लिए देखिए बहुत easy method तो ये है कि you substitute these particular values in the equation of trajectory. Equation of trajectory अगर आपको ध्यान हो तो y is equal to x tan theta minus half g x square over u square cos square theta. अब यहाँ पे देखिए आपको x पता है, you know angle 30, you know the velocity, you know x, you know the value of g. You can find out y. Y will give you the height at which our water will hit the building. So x is 50, substituting into tan of 30 minus half into 10 into x square, that is 50 cos square upon u square. U square is 40 square into cos square 30 into cos square 30 degree. Now you can mathematically go on solving this particular expression, and the value that you will be getting on solving this is 18.45 meters. So the answer to this will be 18.45 meters. We go on to the next question, that is next problem. अगली प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3. A projectile is shot at an angle of 30 degree to the horizontal with an
with an initial speed of 100 root 3 meter per second. What is the speed? What is the speed? What is the speed at the maximum height of the trajectory? ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम. A projectile is shot at an angle of 30 degree to the horizontal with an initial speed of 100 root 3 meter per second. What is the speed at the maximum height of the trajectory? So देखिए प्रोजेक्टाइल जब हम फायर करते हैं, ये मेरा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये आपने फायर किया है at an angle of 30 degree and the speed is given to you as 100 root 3 meter per second. Now when it is fired, it will go and it will hit like this. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है जब हम कहते हैं कि the particle has achieved its maximum height, और इस पर्टिकुलर हाइट पे हम पता करना चाहते हैं कि what is the speed. देखिए अगर कहीं भी मिनिमम स्पीड होती है तो वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी पे होती है, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो. तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा. सो देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx is equal to u times the cos of theta. What is u? 100 root 3 into cos of 30 into cos of 30. That is 100 root 3 into, now cos 30 is root 3 by 2, that is equal to 50 into 3, that is equal to 150 meter per second. So answer is 150 meter per second. At the highest point the velocity is equal to this. Now we go on to next problem, that is fourth problem. Fourth problem. A body is projected at an angle of 45 degree with horizontal with kinetic energy E. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy at the highest point? Now एक बॉडी है which is projected at 45 degree angle with the horizontal, और उसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमने कितनी दी है? E. तो हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. सो देखिए बेटा, अगर हमने प्रोजेक्टाइल लिया और उसको कितने एंगल पे इस बार प्रोजेक्ट किया है? वी आर प्रोजेक्टेड इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है E, that is equal to half m into v square. Initially जो kinetic energy है, that is equal to half m into, sorry, u का square, because we have projected it with u velocity, half m into u का square. जब ये highest point पे पहुंच जाती है तो इसके पास सिर्फ horizontal component of velocity रह जाता है. वो horizontal component of velocity कितना होता है? u cos 45. Cos 45 is 1 by root 2, or u by root 2 is the horizontal component that we are having at the highest point. तो अब आप देखिए इस समय एनर्जी मान लेते हैं E dash. So E dash is equal to half m
इंटू u by √2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज E by 2, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे है वो हाफ है जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रॉब्लम 5. you and a friend are standing on a snow covered roof. You both throw snowballs with the same initial speed, but in different directions. You throw your snowball downward. You throw your snowball downward at 40 degree below the horizontal. Your friend throws her snowball upward at 40 degree above the horizontal. When the snowballs land on the ground, what is the speed of your snowball? What is the speed of your snowball? A part, greater than B part, less than, or C part the same as the speed of your friend's snowball. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. देखिए क्या है कि आप और आपका दोस्त एक रूफ पे खड़े हैं और रूफ स्नो कवर्ड है एंड यू आर थ्रोइंग स्नोबॉल्स. आप जो है नाउ थ्रो योर स्नोबॉल डाउनवर्ड एट 40 डिग्री ब्लू. हम क्या करते हैं, देखिए दोनों, मैं और मेरा दोस्त जो स्नोबॉल फेंक रहे हैं वो सेम इनिशियल स्पीड से फेंक रहे हैं, बट फर्क ये है कि आई एम प्रोजेक्टिंग द बॉल लाइक दिस. I am projecting the ball with a velocity u at an angle of 40 degree with the horizontal below from this roof of h height. But जो मेरा दोस्त है वो कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है? Like this at 40. So my friend is projecting the snowball in the upward direction at 40 with the same initial velocity with which I am projecting. तो जब ये ग्राउंड पे हमारी दोनों की स्नोबॉल पहुंचती हैं तो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड, कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर द स्पीड ऑफ द टू स्नोबॉल्स. एक स्नोबॉल को हमने 40 डिग्री विद द वर्टिकल बिलो फेंका है और एक को सेम वेलोसिटी u से अबव द हॉरिजॉन्टल फेंका है और दोनों की स्पीड को हमने
कंपैरिजन करना है कि किसकी स्पीड कितनी होगी, क्या होगा स्पीड का। नाउ देखिए, जिसको आपने अबव फेंका है, तो जब वो सेम लेवल पे आएगा, रूफ के सेम लेवल पे आएगा, तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस। रूफ के सेम लेवल पे इट विल बी कमिंग लाइक दिस। और यहां पे क्या होगा बेटा, जब ये यहां पे आया तो इट विल मेक द सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज दैट व्हेन इट वाज प्रोजेक्टेड। सो इट विल बी हैविंग सेम वेलोसिटी when it reaches this particular level, and it will be on the same angle at which it was projected. तो आप देखिए ये u velocity से आया और horizontal के साथ it is making same angle as 40 degree when it was projected. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहुंच गया and it will again have two horizontal components, horizontal and vertical component. U cos 40 is the horizontal component and u sin 40 is the vertical component. Now मेरा स्नोबॉल जो है, ये तो मेरे फ्रेंड के स्नोबॉल का एनालिसिस हो गया। मेरा जो स्नोबॉल है उसके पास शुरुआत में ही उसको मैंने डायरेक्ट ही ऐसे किया है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ बिलो मैंने फायर किया है, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से, u cos 40 और u sin 40। तो देखिए मेरे वाला स्नोबॉल ग्राउंड पे लेट पहुंचेगा, लेकिन जो वेलोसिटी मेरे वाले स्नोबॉल की होगी ग्राउंड पे पहुंचते वक्त, वही मेरे फ्रेंड की होगी, वही मेरे फ्रेंड की स्नोबॉल की होगी। सो इसका मतलब आंसर क्या बनता है कि दोनों की स्नोबॉल्स के पास सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों जब बिल्डिंग से गिर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज भी सेम है और वर्टिकल वेलोसिटीज भी सेम है। सो द मोमेंट दे स्ट्राइक द ग्राउंड दे विल बी स्ट्राइकिंग विद द सेम वेलोसिटीज। सो ये हुआ प्रॉब्लम 5, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम 6th। Now problem number 6, why does, ये भी conceptual problem है, why does the direction of motion, why does the direction of motion of a projectile become horizontal at the highest point of its trajectory। जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्रैजेक्टरी का, उस पे बोल रहा है मोशन हॉरिजॉन्टल क्यों हो जाता है। तो देखिए बेटा, ये हमें अच्छे से पता है कि यदि हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करें तो ये कुछ इस तरह का पाथ ले लेता है, इस तरह का पाथ ही ले लेता है, एक पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट आता है। अब देखिए इनिशियली इसके पास हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा की वेलोसिटी है और वर्टिकल में u sin थीटा की वेलोसिटी है। आप कहीं मर्जी जाइए, u cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। यहाँ जहाँ मर्जी थ्रू आउट दी पाथ, जहाँ मर्जी आप देखिए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ब्रिंगिंग अबाउट नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज डेसेलरेटिंग। तो देखिए इनिशियल में u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी थी, और ये u sin थीटा क्या हो रही है, सक्सेसिवली घटती जा रही है। जब हाईएस्ट पॉइंट आया तो वर्टिकल वेलोसिटी vy टर्न्स आउट टू बी 0 एंड देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसलिए सिर्फ जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट रह गया, सो एट हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल मोशन बिकम्स हॉरिजॉन्टल, द प्रोजेक्टाइल मोशन बिकम्स horizontal. Now we will go on to next problem, P7.
Problem number 7. At what point of the projectile path is the speed minimum? Is the speed minimum and maximum also? तो अगर एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, उसकी स्पीड मिनिमम कब है और उसकी स्पीड मैक्सिमम कब है, ये हमने बताना है। देखिए, शुरुआत में जब आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया है तो उसकी स्पीड u थी और इसके दो कंपोनेंट्स बन गए u cos थीटा और u sin थीटा। कंसेक्टिवली हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, सिर्फ उसके पास रह गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जब यही प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे पहुंचा तो जितनी वेलोसिटी इसके पास शुरुआत में थी उतनी ही वेलोसिटी इसके पास ग्राउंड में पहुंचते वक्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड मैक्सिमम कब हुई? व्हेन मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यानी कि स्टार्ट पे स्पीड इज मैक्सिमम और एंडिंग पे वही स्पीड है जिससे फायर किया था, तो एंड पे ऑल्सो द स्पीड इज मैक्सिमम। बट व्हाट अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे द स्पीड इज लीस्ट। स्मॉलेस्ट। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करें तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे ये जो टोटल एनर्जी थी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, बट द काइनेटिक एनर्जी हियर इज लीस्ट। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 8. Problem number 8. A projectile is launched with an initial velocity of 3i cap plus 2j cap. What is its velocity? And acceleration at the top of its trajectory. Now, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने लॉन्च किया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करनी है टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी पे। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। वेक्टर फॉर्म के हिसाब से जो x डायरेक्शन है दैट इज नोस i, तो x डायरेक्शन हो जाएगी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट is equal to 3 meter per second. And what is the acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity at the highest point is equal to, acceleration at the highest point is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, तो वो किसके बराबर होगी? g के बराबर। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट
the acceleration is equal to the acceleration due to gravity, and the velocity is 3 meter per second. Now we go on to next problem, problem number 9. A child rides on a pony walking with constant velocity. The boy leans over to one side, and a scoop of ice cream fall from his ice cream cone. Describe the path of the scoop of ice cream as seen by A part, the child, and B part, his parents standing on the ground nearby. So देखिए एक child है who is riding on a pony and the pony is moving with constant velocity. So the child लीन कर जाता है, चाइल्ड घोड़े पे बैठा हुआ चाइल्ड जो है एक साइड पे लीन कर जाता है और उसका आइसक्रीम का जो स्कूप है वो गिर जाता है. तो आपने ये बताना है कि जो स्कूप है उसका पाथ बच्चे को कैसा दिखेगा और जो पेरेंट्स अगर बाहर खड़े हैं तो उनको उस स्कूप का पाथ किस तरह का दिखेगा. वी वांट टू सी दिस. तो देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है. देखिए डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में मोशन डिफरेंट तरह का नजर आता है. अब अगर बच्चे के रिस्पेक्ट में बात करें तो घोड़ा जैसे ही स्कूप रिलीज हुआ, जैसे घोड़े से स्कूप रिलीज हुआ तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही मिल गई जो घोड़े की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और घोड़ा भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चले जा रहा है. तो बच्चे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्कूप की होगी और जो पोनी की होगी या बच्चे की होगी वो कैसी होगी, सेम. So both are having same velocities. Now what will happen? The path as seen by the boy will be a straight line. तो बच्चे को जो है उस स्कूप का जो पाथ है वो कैसा नजर आएगा? It will be a straight line path as observed by the child. तो देखिए अगर बच्चा, क्योंकि बच्चा जितना आगे चलता है उतना ही जो स्कूप है वो आगे चलता है, लेकिन स्कूप को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मिली हुई है, स्कूप वर्टिकली भी जा रहा है तो इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा. लेकिन अगर बात करें पेरेंट्स की तो जो पेरेंट्स हैं वो दे आर स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे हैं और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होने के कारण दे विल फील दैट द पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक, यानी कि उन्हें जो पाथ दिखाई देगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ दिखाई देगा और वो कैसा होगा, इट विल बी पैराबोलिक. सो लेकिन बच्चे को कैसा पाथ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन. और पेरेंट्स को कैसा पाथ दिखाई देगा, पैराबोलिक पाथ. Problem number 10. If a rock is dropped from the
from the top of a sailboat's mast, will it hit the deck at the same point whether the boat is at rest or in motion at constant velocity. If a rock is dropped from the top of a sailboat's mast, will it hit the deck at the same point whether the boat is at rest or in motion at constant velocity? Now देखिए सेलबोट का जो फैन है, जो उसमें कपड़ा लगा होता है, उसका जो टॉप है, वहां से वी आर ड्रॉपिंग वन रॉक, एक रॉक ड्रॉप किया हमने। तो अगर बोट रेस्ट पे है तो क्या होगा, तो जो हम ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे वो भी रेस्ट पे ही था, उसकी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 थी। तो व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट बी अंडर फ्री फॉल, तो वो सिर्फ फ्री फॉल में होगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाएगा जाके। नाउ इफ द बोट इज इन मोशन, अगर बोट चल रही है तो देखिए जब आपने रॉक को ड्रॉप किया तो जो बोट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वही रॉक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई। तो इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। कैसा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ये? हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, बोट जितना आगे जाती है हॉरिजॉन्टली, स्टोन भी हॉरिजॉन्टली उतना ही आगे जाएगा। सो जहां वो पहले हिट किया था वहीं के वहीं हिट वो करेगा दोबारा से, चाहे बोट यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे बोट रेस्ट में हो। अगर मैस्ट से आपने एक रॉक ड्रॉप किया है, यू हैव रिलीज ए रॉक, then it will hit at the same point in these two situations. So answer is that it will hit at the same point in the two situations. Now next we go on to problem number 11. Problem number 11. Now two projectiles are launched from the same point at the same angle above the horizontal. Projectile 1 reaches a maximum height, twice that of projectile 2. What is the ratio
what is the ratio of the initial speed of projectile 1 to the initial speed of projectile 2. देखिए दो प्रोजेक्टाइल हैं, सेम पॉइंट से लॉन्च किए गए और सेम एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लॉन्च किए गए. प्रोजेक्टाइल 1 रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ट्वाइस दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल 2. प्रोजेक्टाइल 1 जो है वो दुगना हाइट पे पहुंचता है व्हेन कंपेयर टू प्रोजेक्टाइल 2. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 टू दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल 2? लेट अस सपोज दैट प्रोजेक्टाइल 1 जिस इनिशियल स्पीड से लॉन्च किया गया है दैट इज u1 और जो प्रोजेक्टाइल 2 है वो लॉन्च किया गया u2 स्पीड से. दोनों को हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल थीटा लॉन्च किया गया. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपको हाइट का फॉर्मूला पता होगा. मैक्सिमम हाइट जो होती है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये मैक्सिमम हाइट आपको पता है. तो जो हाइट 1 अचीव करता है आई से दैट एज h1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द हाइट अचीव्ड बाय द सेकंड. तो आप यहां देखिए u1 स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे हाइट की, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. लेकिन इसका क्या है, ये हाइट h1 जो है ये दुगनी है इसके, तो ये मैंने यहां पे दुगना कर दिया. अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉमन है, वो कैंसिल कर जाएगा. आपके पास क्या आएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स u2 का स्क्वायर. तो u1 अपॉन u2 रेशो चाहिए हमें स्पीड्स की, दैट विल बी इक्वल टू √2 अपॉन 1. सो स्पीड्स की रेशो जो आ गई दैट इज √2 is to 1. We go on to the next problem, problem number 12. A projectile is fired. A projectile is fired at an angle theta with respect to horizontal from the surface of earth, from the surface of the earth. Assume that the projectile is fired, that the projectile is fired from the surface of the moon instead of the earth. Instead of the earth with the same initial velocity, and at the same angle of projection, what can you say
about the maximum height and range of the projectile. So देखिए दो पार्टिकल्स सेम एंगल सेम वेलोसिटी से फायर किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, लेकिन फायर कहाँ से किए गए हैं? फ्रॉम दे हैव बीन फायर्ड वन ऑन अर्थ सरफेस एंड अनदर ऑन सरफेस ऑफ मून। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों की हमने क्या चीज़ें कंपेयर करनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट और दूसरा रेंज कंपेयर करनी है। दोनों की प्रोजेक्शन में क्या फ़र्क होगा, क्या चीज़ डिफर करेगी? दैट विल बी वर्टिकल मोशन विल बी डिफरिंग बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट। सो आप देखिए आपको मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन पता है, तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज मैक्सिमम हाइट। अब अर्थ पे g है, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, लेकिन अगर मून पे जाएंगे तो अर्थ के 1/6 हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइट है, बाकी सारे फैक्टर सेम है, u ये g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2 सब फैक्टर सेम रहेंगे। इसका मतलब हाइट की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ की जो हाइट है h, उसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मून पे जब आप जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड विल बी मोर, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून से ज्यादा है, तो ये फैक्टर बड़ा हो गया, तो नेचुरली हाइट विल बी लेस। सो हाइट ऑन मून will be greater than height on earth. Now what about range? देखिए रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, u भी सेम है थीटा भी सेम है, अगेन रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रेंज अगेन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है इन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कम है तो रेंज ज्यादा होगी मून पे, सो रेंज ऑन मून विल बी ग्रेटर देन रेंज ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। Now three projectiles A, B and C are launched with different initial speeds, so that they reach the same maximum height as shown in the figure. List the projectiles in order of increasing A part speed and B part time of flight.
नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देखिए ये 3 पार्टिकल्स हमने प्रोजेक्ट करे हैं सेम पॉइंट से एट डिफरेंट एंगल्स एंड विद डिफरेंट स्पीड्स. तो नाउ द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड for the 3 of them is same. Now the different initial speed से हमने लॉन्च किए हैं, nothing is given about the angle. तो different initial speed से हमने लॉन्च किया, A पार्टिकल को अलग स्पीड से, B को अलग से, C को अलग से. सबकी रेंज डिफरेंट है लेकिन मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज सेम. सो रेंज इज डिफरेंट एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज सेम. तो हमसे वो पूछ रहा है कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी. तो देखिए इसके लिए वी नो दैट रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है. रेंज के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वो रिस्पॉन्सिबल है, और हाइट के लिए u sin थीटा. यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx equal to u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज and Vy is equal to u sin theta. This component, vertical component, is responsible for height. This for range and this for maximum height. अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये मैक्सिमम रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब रेंज जिसकी सबसे ज्यादा उसका u cos थीटा भी ज्यादा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ज्यादा. तो यानी कि C का सबसे ज्यादा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उससे कम और A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबसे कम. और व्हाट अबाउट u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, वो तीनों का सेम. तो आपको पता है रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. अब Vy तो तीनों का सेम है लेकिन Vx जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. तो Vx सबसे ज्यादा है C का, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ C इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उससे कम और सबसे कम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है A का. तो Vc इज ग्रेटर देन Vb इज ग्रेटर देन Va. सो ये हो गया डिस्कशन अबाउट स्पीड. Now next he talks about the time of flight. Now time of flight का फॉर्मूला हमें पता है, इसको मैं रब कर रहा हूं. Now time of flight का फॉर्मूला हमें पता है, that is equal to 2u sin theta by g. That means 2 velocity in the y direction upon g. तो y डायरेक्शन में तीनों की वेलोसिटी चूंकि सेम है तो इसलिए क्या होगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम फॉर ऑल द 3 पार्टिकल्स. यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए पार्टिकल विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सी पार्टिकल. सो ए बी सी तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होगा, सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन. देखेंगे. A projectile is fired with an initial velocity of 35 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal. At an angle of 30 degree above the horizontal. Find the magnitude of the velocity at t equal to 3 seconds and take the value of g as 10 meter per second square. Take the value of g as 10 meter per second square. तो देखिए एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया है, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और g की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं करती, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस as the projected particle moves forward, the vertical velocity changes. So horizontal velocity Vx is equal to 35 times cos 30, that is equal to 35 into root 3 upon 2. So let it be like this only, these many meter per second. Now what about vertical component of velocity? Vy is equal to uy minus g into t. This negative sign is because the projectile is going in the upward direction, and this is retardation, g is retarding this particle. तो आप देखिए uy कितना हो गया बेटा 35 sin 30 माइनस g is 10, और जो टाइम हमसे पूछा गया है वो है 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 35 इंटू हाफ माइनस 30। ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी नेगेटिव रिजल्ट, दिस इज नेगेटिव रिजल्ट। सो ए नेगेटिव रिजल्ट डिपिक्ट्स दैट द वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी द पार्टिकल द प्रोजेक्टाइल हैज अचीव्ड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड इट इज मूविंग आफ्टर दैट। तो आप रिजल्टिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा? रिजल्टिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx square plus vy square, because both the velocities vx and vy are perpendicular to each other. तो अगर आप ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 32.8 मीटर पर सेकेंड। यू विल गेट द आंसर एज 32.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, next question 15th. A projectile is fired with an initial velocity of 35 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal from the roof of a building, from the roof of a building 30 meter high. Find A part. The maximum height of the projectile above the point of projection, B part. The time to rise to the top of the trajectory, C part. The total time that the projectile is in the air.
नाउ देखिए एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है और उसको एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है वहां से फायर किया गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपसे पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट टू विच द प्रोजेक्टाइल विल राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए इसका मैं एक स्केच बनाऊंगा। ये है हाइट, बिल्डिंग की हाइट। नाउ द बिल्डिंग इज 30 मीटर हाई। ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, उसकी स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड और कितने एंगल पे इसको फायर किया गया है 30 डिग्री के एंगल पे। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल अंडरगो दिस सॉर्ट ऑफ ए मोशन। इस तरह का मोशन ये एग्जीक्यूट करेगा। अब आप देखिए इस तरह के मोशन में वो पूछ रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट अचीव्ड कितनी होगी। वेरी सिंपल, you can find the maximum height by using the result A part, that is equal to maximum height is u square sin square theta upon 2g। तो u square कितना है 35 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू जी, जी इज 10 अपॉन 2 इंटू जी, जी इज 10। सो ये आपके पास कितना आ जाता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस मैक्सिमम हाइट एज 15.3 मीटर। सो फ्रॉम द बिल्डिंग टॉप द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड और फ्रॉम द हाइट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज 15.3 meters। नाउ सेकेंड पार्ट इज द टाइम टू राइज टू द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो जो टॉप पॉइंट है ट्रेजेक्टरी का उस पर कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को पहुंचने के लिए। तो उसके लिए देखिए बेटा बी पार्ट t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। जो टोटल लेंथ है पाथ की उसके लिए जो टोटल टाइम लगता है वो 2u साइन थीटा बाई जी लगता है और हाफ टाइम में जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। तो जो टाइम लगा वो कितना लग गया u साइन थीटा बाई जी। u कितना है 35 और साइन ऑफ क्या चीज 30 डिग्री अपॉन 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 35 इंटू 1/2 इंटू 10। ये आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे सो यूल गेट दिस एज 1.75 seconds। तो आफ्टर 1.75 seconds it will be at the highest point of the trajectory। Now third part क्या है, the total time that the projectile is in air। तो अगर आपने अब टोटल टाइम निकालना है कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए हवा में रहता है, कंप्लीट टाइम। सो देखो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी विल मेक ओनली वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिंपली हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग द टाइम। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, उसके लिए वी हैव टू अज्यूम सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी हमें। वी विल अज्यूम दैट the upward direction as positive as negative, upward direction negative, downward direction positive। so देखिए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रॉम दिस पोजीशन काउंट होगी, तो वो कैसी है डाउनवर्ड। जी भी कैसा है डाउनवर्ड, यानी कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड है और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है 35 साइन 30। तो अपवर्ड डायरेक्शन मैंने बोला है नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। सो अपवर्ड नेगेटिव, जो भी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। Now upward direction negative है, downward direction positive है। Now what we want to find out, we want to find out the total time, let the total time be t। तो आप देखिए ये रिलेशन यूज कर लीजिए h is equal to u y t ut plus half a y into t का स्क्वायर। तो यहां से बेटा देखो h कितना है
30 और ये 30 कैसा ले रहा हूं पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू ये uy है 35 sin 30 और ये कैसा लूंगा नेगेटिव, बिकॉज मैंने आपको बताया अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो 35 sin 30 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से बेटा देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली, 30 प्लस 5t स्क्वायर। तो यदि आप इसको देखें तो ये बन जाएगी 10t स्क्वायर अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं फॉर टाइम। तो ये जो टाइम आएगा यहां से दिस विल बी 4.76 seconds. So this will be 4.76 seconds. This is the total time. Next we go on to problem number 16. It is proposed to clear a 10-meter high wall, using a projectile to be fired with an initial velocity of 30 meter per second, making an angle of 30 meter per second, making an angle of 30 degree above horizontal. Calculate the distances from the wall, at which projectile should be fired. ये बहुत एक्सटेंडेड टाइप क्वेश्चन है। देखिए एक 10 मीटर हाई वॉल हमने एक प्रोजेक्टाइल से क्लियर करवानी है और प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम 30 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब देखिए हमने क्या करवाना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंसेस फ्रॉम द वॉल एट विच द प्रोजेक्टाइल शुड बी फायर्ड। सो देखिए ऐसा हो सकता है कि ये 10 मीटर लंबी वॉल है और मैं एक प्रोजेक्टाइल यहां से करीब से फायर करूं, तो हो सकता है ये 10 मीटर वॉल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। फिर दोबारा से 10 मीटर की वॉल आगे भी आ सकती है। मैक्सिमम हाइट से, यदि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट से 10 मीटर की हाइट ज्यादा है, 10 मीटर की हाइट कम है, तो क्या हो सकता है वॉल्स दो पोजीशन पे आ सकती है जहां पे कि वो क्रॉस कर जाएगी और विदाउट टचिंग द वॉल। तो अब देखिए एक डिस्टेंस ये हो सकता है वॉल प्रोजेक्टाइल का, सपोज पॉइंट P से आप फायर कर रहे हैं, तो एक डिस्टेंस हो गया x1 और दूसरा डिस्टेंस हो गया, सेकेंड डिस्टेंस कैन बी x2। मतलब आप सेम वॉल को अगर प्रोजेक्टाइल को दूर ले जाएंगे, प्रोजेक्टाइल की फायरिंग पॉइंट को दूर ले जाएंगे, तो भी उसको 10 मीटर क्रॉस करा सकते हैं एंड नजदीक से भी 10 मीटर क्रॉस करवा सकते हैं। तो अब इसका आंसर देखने के लिए देखिए बेटा, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट x1 एंड x2। तो इसको हम
क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए y आपको दे रखा है उसने कितना 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू x कितना है, x हमने निकालना है tan थीटा tan 30 मतलब 1/√3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर u कितना है 30 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 इज √3/2, ये हो गया 3/4। यदि आप इसको अब देखिए यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, x में। यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो you'll get two roots, x is 26 meter and 52 meter. On solving this particular quadratic equation we get x is 26 meter and 52 meter. That means आप प्रोजेक्टाइल को उस दीवार से या तो 26 मीटर पीछे होके फायर करें और या 52 मीटर होके फायर करें, then only your projectile will cross that particular wall.